السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين اللهم ثم آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین اللہم ثم آمین۔ الحمد للہ کثیرہ تجوید ایڈوانس کورس میں ہم نے پارٹ 1 کمپلیٹ کر لی اللہ کے فضل سے۔ اس کا میں نے آپ سے جو ہے وہ گروپ ڈسکشن بھی کروائی، آپ کو جو ہے وہ سرپرائز کوئز بھی لیا، جس کا الحمدللہ کثیرہ اچھا رزلٹ آیا۔ تو اللہ آپ کو قرآن کی بہترین معلمات بنائے، آمین اللہم ثم آمین۔ آپ نے نیکسٹ ہم نے جو اب کرنا ہے وہ ہے پارٹ 2 ایڈوانس کورس کا۔ اس میں ہم نے پہلے میں جو ہے وہ مخارج کو ڈیٹیل میں جان لیا، پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اصطلاحات ضروریہ بھی کر لی، حروف کی اقسام بھی کر لی، اور فتحہ ضمہ کسرہ کی مشق بھی کر لی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہم نے کر لیے تجوید کے پارٹس۔ تو اب جو ہے وہ نیکسٹ مین جو ہمارا پارٹ تھا، ہم نے مداد کا ٹاپک کر لیا اللہ کے فضل سے، یعنی ہم نے ہاف کورس اپنا کمپلیٹ کر لیا پارٹ 1 میں، جن میں سب سے مین پوائنٹ جو تھے وہ تھے مخارج، اور نمبر 2 مداد کا ٹاپک۔ یہ بہت لینتھی تھا جو کہ ہم نے اللہ کے فضل سے کور کر لیا بہت اچھے سے۔ اب جو پیچھے رہ گیا وہ پارٹ 2 میں وہ تھوڑا بھی ہے، اور انشاءاللہ وہ ایزی ہے، وہ آپ آسانی کر لیں گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ 3 منتھ کا ہمارا یہ کورس ہے، اور اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ ہم 3 منتھ سے پہلے ہی کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ہم نے صورتوں کی بھی مشق کرنی ہے، اس کے ساتھ پہلے ہم نے یہ پڑھ لیا، اب ہم اس کو جتنا ہم نے پڑھا ہوگا وہ ہم نے صورتوں میں، یعنی ہم نے قرآن میں اپلائی بھی کرنا ہے۔ یعنی ہم نے مخارج پڑھے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مخارج کون سا کس صورت میں کس طرح سے ادا ہوگا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ فی الحال ہم آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارا نیکسٹ پارٹ 2 رہ گیا اس کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے۔ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے تنوین، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ ہم پارٹ 2 میں جو مین ہمارے ہیں وہ ہم کریں گے، اور آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ تنوین ایکچولی میں کہتے کسے ہیں، بعد میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس کے قواعد پر چلیں گے۔ پہلے ہم تنوین کو جان لیں کہ یہ اصل میں ہوتی کیا ہے۔ لکھ لیں تنوین، نیچے اس کے لکھ لیں ڈیفینیشن۔ اگر دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نون تنوین، اچھا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ صرف تنوین تھا، یہ مائنڈ میں رکھنے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مکس اپ ہو جاتا ہے اور گرلز اکثر جو ہے وہ غلط کر جاتی ہیں۔ تنوین کیا ہے؟ اگر دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ اور نون تنوین کیا ہے؟ اب نون تنوین لکھ لیں۔ اگر کسی حرف کے اوپر، ریممبر یہ بہت مین ڈیفینیشن اور ڈفرینس ہے اس کا، تنوین کا اور نون تنوین کا۔ تنوین میں اگر دو زبر، یعنی کہ اگر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، لیکن نون تنوین اگر کسی حرف کے اوپر، یہ مسٹ آپ نے یاد رکھنے، اگر کسی حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو وہ نون تنوین ہوگی۔ جب ہم نون تنوین کو پروناؤنس کریں گے، یعنی ہم اس کو ادا کریں گے، تو آخر میں نون کی آواز سنائی دے گی، جیسے مثال کے طور پر غاسقین، یہ دیکھیں غاسقین۔ اب قین میں جو ہے وہ لاسٹ پہ ہم نے نون تنوین ادا کر رہے ہیں نا، کیونکہ یہ حرف کے اوپر ہم نے کیا پڑھا، اگر حرف کے اوپر زبر زیر پیش، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو یہ قین کے نیچے دو زیر ہے، اور یہ دیکھا قاف دو زیر قین، نون کی لاسٹ پہ آ رہی ہے نا
साउंड, तो इसे नून तनवीन कहेंगे। इसमें क़ाफ पर नून तनवीन होगी क्योंकि हमें क़ैन बोलते वक्त नून की आवाज़ सुनाई देगी। अगर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आयत के लास्ट पर आए, यानी आखिर पर जब आयत मुकम्मल हो रही होती है, तो नून तनवीन नहीं होगा, क्योंकि आयत के लास्ट में हम वक्फ करेंगे। आयत लास्ट में हम उसको साइलेंट, अगर वो एक ज़बर हो तो हम उसको साइलेंट कर देते हैं, लेकिन अगर दो ज़बर दो ज़ेर हो तो उसको एक ज़ेर ज़बर पढ़ते हैं। तो इस वजह से फिर मस्ट याद रखना है कि लास्ट पर अगर आ जाए ना किसी हर पर दो जे दो ज़बर दो पेश, तो वहाँ पर नून तनवीन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने वक्फ करना है, तो वक्फ में हम साइलेंट कर देते हैं या फिर वन ज़बर जेर पेश पढ़ते हैं। इस वजह से सांस तोड़ेंगे तो ये साकिन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि हम सुकून की हालत में बदल देते हैं, जैसे अहद। अब अहद में देखें है ये दो पेश, हालांकि अगर हम इसको वसलन पढ़ें तो हम कहेंगे अहदुन, फिर ये नून तनवीन होगा, लेकिन हम यहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है तो हम उसको साइलेंट कर रहे हैं, उसको साकिन हालत में चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या है, अहद। अहद में ये साइलेंट हो गया तो यहाँ पे नून तनवीन नहीं होगा, क्योंकि ये आहर में आ रहा है, तो यहाँ नून तनवीन नहीं होगी, बल्कि ये साकिन हो जाएगा। जैसे कि मैं अहद पढ़ रही हूँ, अहद में आपने एक और भी चीज़ नोट की होगी कि ये कलकला में से हर्फ है, यानी दाल कुतुब जद्दीन, तो यहाँ पे कलकला होगा। ज़बर को अरबी में फतहा, जेर को कसरा और पेश को जुम्मा कहते हैं, ये मैं आपको डिटेल में पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये तो होगी नून तनवीन और तनवीन में डिफरेंस बेसिक। अब हम पढ़ते हैं नून साकिन, यानी फर्स्ट में हमने तनवीन पढ़ा कि होता क्या है, सेकंड में नून तनवीन पढ़ा, अब थर्ड में नून साकिन पढ़ना है, ताकि इन सब को जानने के बाद हम इनके क्वायत पर चलेंगे इंशाल्लाह। नून साकिन, जब नून सुकून की हालत में होगा, यानी साकिन जिस्म की हालत में होगा, तो उसके ऊपर जब्बर जेर पेश ना हो तो उसे नून साकिन कहेंगे। यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत में से कोई भी नहीं होगी ना, जब किसी भी हर्फ पर, यानी जो नून है किसी भी हर्फ पर नहीं, याद रखना नून के ऊपर, क्योंकि ये नून के हम क्वायत पढ़ रहे हैं ना, नून साकिन और नून तनवीन के क्वायत। तो नून साकिन में क्या होगा कि जब नून साकिन की हालत में हो, यानी सुकून जिस्म की हालत में, उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश ना हो, यानी हरकत नहीं हो, कोई भी हरकत ना हो, सिर्फ जस्म हो, वो साकिन हालत में हो, तो उसे नून साकिन कहेंगे। जैसे मिन जोइन, अब मिन में देखें, मिन में मिम जेन मिन है, तो ऊपर जज्म में यानी साकिन क्या रहता है, तो यहाँ पर नून साकिन होगा, नून तनवीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दो जबर दो जेर पे दो पेश वाला है। इसी तरह मिन हा वगैरह, ठीक है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हम नून साकिन और नून तनवीन में फ़र्क देखते हैं। ये तो हमने उनकी डेफिनेशन देखी है ना, अब हम उसको में डिफरेंस जानते हैं। नंबर वन पॉइंट लिख लें, नून साकिन पर कोई हरकत नहीं होगी, यानी नून साकिन बगैर हरकत के होगा, जबकि नून तनवीन पर हरकत, यानी दो जबर दो जेर या दो पेश होगी। नंबर टू, नून साकिन हमेशा किसी लफ्ज़ के दरमियान या आखिर पर आता है, यानी जो जिस्म की हालत है ना, जो जब नून जिस्म की हालत में होगा, सुकून की हालत में, तो वो या तो दरमियान में आता है लफ्ज़ के, या फिर आखिर पर। जैसे मिन हा, अब मिन हा में मीम जेनुन मिन है, यानी दरमियान में नून आ गया, और हाँ जो है वो लास्ट पे आ रहा है, तो ये मिन हा यानी नून साकिन की इंडेफिने वो है एग्जांपल। जबकि नून तनवीन हमेशा आयत और लफ्ज के आहे में आता है। मसलन कुफुवन, कुफुवन देखें, वन में अब जो है वो कुफुवन में वाओ लास्ट पे आ रहा है, तो यहाँ ऊपर दो जब्बर है, तो ये नून तनवीन हो गया। लहबिन, लाहबिन देखें, बिन भी लास्ट पे आ रहा, तो यानी ये आयत के ये लफ्ज़ के आखिर पे लास्ट पे आएगा, या आयत पे, क्योंकि लाहबिन में जो है वो लास्ट पे आ रहा है ना, आयत मुकम्मल हो रही है, और या फिर लफ्ज़ के लास्ट पे आएगा, ये दरमियान में नहीं आएगा, इसमें ये मेन डिफरेंस है। इसमें बा पर तनवीन होगी क्योंकि ये लास्ट पर आ रहा है, जैसे मैंने लाहबिन में आपको बताया ना कि ये लास्ट पे आ रहा है, तो यहाँ पे नून तनवीन होगी। नंबर थ्री लिख ले, नून साकिन लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, यानी मिनहा, मिनहा में हमने पढ़ा भी, और लिखते हुए हम लिखेंगे भी कि ये मिनहा में नून हम प्रॉपर लिखेंगे। जबकि नून तनवीन हम सिर्फ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जैसे कुफुवन,
वन में पढ़ते हुए हमने तनवीन पढ़ा, लेकिन जब लिखा कुफुवन तो वाव दो जबर वन लिखा है, नून साथ नहीं आया। ये इसका मेन डिफरेंस है। इसे हम सिर्फ पढ़ते हैं यानी लिखते नहीं है। नून साकिन की, अच्छा आपके करने का अब काम क्या है? नून साकिन की आपने कुरान से मिसालें ढूंढनी है, और नून तनवीन की बहुत ईजी है, आपको कुरान ओपन करते साथ मिल जाएंगे। नून साकिन की मैं एक दो आपको बता देती हूँ। कहफ आया नंबर जो है वो 65 में, मिन इंदिना, मिन, अब देखिए ये नून साकिन की है क्योंकि ये लास्ट पे आ रहा है, और जस्म की हालत में, इस पे मुतहरक यानी ये हरकत की हालत में नहीं है। इसी तरह सूरह कहफ में है कौन कौन, आप देखें ये भी नून जो है वो तनवीन तो है नहीं क्योंकि इस पे जज्म है, साकिन है, तो ये फिर नून साकिन की मिसाल होगी। इसी तरह से आपने कुरान से ढूंढने बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। इस तरह मैं नून तनवीन की आपको कुरान से मिसालें दे देती हूँ। एक तो 79 अल कहफ की आया है, सफीनतिन वायदबा, सफीनतिन, देखें अब सफीनतिन में जो है वो तिल जो है नून तनवीन है क्योंकि दो जेर आ रही है नीचे हर्फ के, तो ये क्या होगी नून तनवीन। इसी तरह अल-गाशिया के नंबर 4 में है, तस्ला नारन, नारन, अब रन में जो है वो हमने नून तनवीन पढ़ा, तो नून तनवीन होगा क्योंकि ये साकन हालत में नहीं है, इसके ऊपर दो जबर है। तो ये तो होगा हमारा नून साकिन और नून तनवीन में मेन डिफरेंस। आज हमने क्या पढ़ा? तनवीन पढ़ा, तनवीन क्या होती है, फिर नून तनवीन, फिर नून साकिन की डेफिनेशन, फिर इन नून साकिन और नून तनवीन में फ़र्क जाना, और उनकी कुरान से मिसालें भी देख ली। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अब जो नेक्स्ट हमारा, इसके साथ हम इंशाल्लाह करते जाएंगे साथ थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारा वो भी कवर होता जाए, जैसे हमने इस्तिलाहात ज़रूरिया भी कवर कर ली थी साथ साथ। इसी तरह इस पार्ट में भी कुछ हैं इस तरह के हरूफ मौकूफ़ अलैह और कुरानी रमूज़ व औक़ाफ़, तो वो इंशाल्लाह हम साथ साथ करते जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करते हैं इब्तदा और इआदा की तारीफ़ करेंगे। क्योंकि वो शॉर्ट है तो इंशाल्लाह वो आपको करवाएंगे, फिर नेक्स्ट साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। इब्तिदा लुग़वी माना शुरू करना, लिख ले इसकी डेफिनेशन। इब्तिदा के लुग़वी माना क्या है? शुरू करना। और इस्तिलाही मायना, इस्तिलाह तजवीद में मौकूफ़ अलैह से आगे पढ़ने को इब्तिदा कहते हैं। जैसे रब्बिल आलमीन पर वक्फ करके अर्रहमान से शुरू करना, यानी जिस चीज़, इब्तिदा क्या है? इब्तिदा के इस्तिलाही माना क्या है कि जिस पर हर पर हमने वक्फ किया उससे आगे पढ़ना, यानी रब्बिल आलमीन पर हमने वक्फ किया, उसके बाद वक्फ करके हमने रहमान पढ़ा। आदा यानी आदा की तारीफ क्या? लोग माना लौटाना, और इस्तिलाही माना इस्तिलाह तजवीद में मौकूफ़ अलैह या उससे पहले वाले कलमे को लौटा कर पढ़ने को इआदा कहते हैं। तो ये दो आपने साथ में लिख लेनी डेफिनेशंस, बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट साथ साथ हम करते जाएंगे, ताकि दोनों ही इजीली हम कर सकें, और ये भी हमारा कोर्स जो हमारा सेकंड पार्ट है वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए आपका इतना ही है, दुआ में याद रखिएगा। लेसन आपने लिख कर सबमिट क्या करवाना है, साकिर नून तनवीन में जो फ़र्क है और उसकी कुरान से एग्जांपल्स, और सुनाना क्या है आपने? इब्तिदा और इआदा की तारीफ, और कुरान से जो एग्जांपल्स आपने लिखनी है वो सुनानी भी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।